Miss Shraddha Kabra. Hi everyone. In today's session, I'll share some of my entrepreneurial experiences with all of you. मैं ESL की टीम से पूछ रही थी कि आज का जो सेमिनार है उसको कोडिंग के बारे में रखना है, entrepreneurship के बारे में रखना है. They have told me to keep it around entrepreneurship. But being an entrepreneur is almost like being a programmer. I'll tell you how. पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. सो आई कम फ्रॉम अ विलेज इन हरियाणा एंड बचपन में मोस्ट ऑफ द जो विजन, जो ड्रीम्स, जो गोल होते थे वो एस्पिरेशनल चीज़ को देख के ही बनते हैं. एंड आई यूज़ टू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी एंड टीवी के अंदर आई यूज़ टू वॉच अ लॉट ऑफ अमेरिकन टीवी शोज. And there was this one particular show that I liked a lot. It was about a doctor and a doctor's life in US, and it became my dream to go to a foreign country like US and become a doctor. So that was my dream for many years when I was in school. So I took one of the smartest decisions that you can take in your 11th class. I took PCMB, and then I started my NEET coaching. And it took me 4 months of NEET coaching to realize that I was not made for biology. And finally I dropped it and I shifted to computer science, and that is how my tech journey began. 11th 12th में I studied C++ like most of us. कुछ Python पढ़ के आए होंगे, कुछ Java पढ़ के आए होंगे. And then I shifted to JEE coaching, and like every other student, IIT became my dream. And then I couldn't crack it. Then I landed at NSIT, did my computer engineering. And like a good student, I was doing good for myself. I was doing my internships. I was learning coding. I got my PPO for Microsoft. And during this journey, I met this man named Mr. Raman Dattarwal. And the way this man changes your mindset about life, and the way this man changes your life. I had all the plans to go to US or London. In fact, in my 4th year, I had gotten referrals for Facebook London, Google USA, and I was very excited to interview for them because it was my dream to go to US and become a software engineer there. How many of you dream the same, to go to a foreign country and get a job there? A lot of us, right? And nobody should blame us because that is what we see, that is what we hear about from our seniors. Him and I, we met in 2020, COVID के बीच में, बिल्कुल जब COVID peak पे था. So at that time, we had an interview about my experiences at Microsoft. And after the interview, we discussed कि ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं कोडिंग के अंदर अभी स्ट्रक्चर्ड मैनर में इतने कुछ अच्छे तरीके से दिए नहीं जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, या इनफैक्ट दिए भी जा रहे हैं. तो क्योंकि मैं भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, ही वाज आल्सो फ्रॉम आईटी, सो वी रियलाइज कि कोडिंग के अंदर कुछ किया जा सकता है. वी स्टार्टेड विद अपना कॉलेज. द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज चेंज माय माइंड अबाउट टीचिंग, and he convinced me to start teaching coding on YouTube. We started with C++. उसके बाद in my 4th year, he convinced me that I should drop my idea about going to a foreign country because India has more opportunities. And India is the future. It is the land of opportunities. उसके बाद when I started my full-time job, it was at Microsoft Hyderabad. You might not know, but Hyderabad is like the main campus of Microsoft. Microsoft has a lot of offices in India, but it's their main campus, and it's like a college in itself. They have an entire building for parking, they have a lake inside, they have multiple buildings. Generally, offices have one floor in a single building, or they have a single building. So it was a really cool office to go to. And when you go and do an internship somewhere, they treat you like Damadji, like Raja Beta. Because in big tech companies, the strategy is as an intern आपको बहुत अच्छे से treat करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, because they want the best talent to come to them. And उसके बाद when you start your full time job, फिर वो वसूल लेंगे सारा. So I had really good experience in my second year internship, which I did offline in Microsoft Hyderabad. I did my second internship there, and उसके बाद मेरा PPO भी वहीं का था. But Aman sir somehow convinced me that I should move my location from Hyderabad to Noida office because it will be better for me to give classes since I was staying in Delhi.
And Noida office was fairly new, the team was new. I was in one of the best teams of Microsoft, which is Microsoft Azure. They're one of the most profitable departments. And I did it. And the next thing he changed my mind about was leaving my job. And I was so convinced कि ठीक है, it has been months, ठीक है, now the decision had to be taken, I'll leave my job. Then I asked him कि ठीक है, मैं तो convinced हूँ, how to convince my parents. Basically I asked him, how did you do it? Because since you did not take up placements, you did not go for a government job. And he told me कि पहले quit कर दो फिर बता देना. And that is exactly what I did. I quit my job and then I asked my parents if I should quit it. And finally over the period of 1 to 2 months I convinced them. Although आज तक convince नहीं हुए हैं, still to this date they tell me to leave all of this and prepare for UPSC. Because it is the dream of every Indian parent to see their child becoming an IAS officer. Because for them it was the ultimate power. But ठीक है, they like my work, ऐसा नहीं है, but I can't take the Indian parent out of them. And yes, so this is what happened and this is how I landed at Apna College. And we started Apna College in like peak COVID times. We started with C++. शुरुआत में उतनी कोई बड़ी हमारी टीम भी नहीं होती थी. We were a fairly new YouTube channel if you consider the tech space. And शुरू में when I started teaching, हर कोई गलतियाँ करता है. हम में से अगर कोई हर कोई नई चीज़ स्टार्ट करेगा तो obviously गलतियाँ करेंगे क्योंकि नई चीज़ें सीखनी पड़ रही है. Even though Aman sir is a very calm person, initially when I used to teach, he used to correct me a lot. He used to tell me कि नहीं, ऐसे हमें पढ़ाना चाहिए, ऐसे हमें ये करना चाहिए, because he is a big believer that a teacher should not work into giving information. They should work regarding transformation. एक transformation लेके आए students में. So he used to correct me a lot, and पहले मुझे काफ़ी बुरा लगता था. उसके बाद आज I knew I had this seminar, so I woke up at around 6. I also woke him up. And I told him that Apna College has now crossed Aman Datarwal YouTube in terms of subscribers. He was happy. It's not a very sad thing. But it's a big achievement for all of us because it is the dream of any, you can say, small venture to basically overcome their parent venture. And it is an achievement for all of us. So if you consider the coding space in YouTube, we have been teaching students for 3 years now. And uske andar, if we consider Apna College, even if we see all the channels that are above the 1 million mark on YouTube, we are, as far as I know, the youngest coding channel in India. And for the last about 1 year, we have also been the fastest growing coding channel in India. We have seen the figure of 1 lakh new subscribers per month. We have seen the figure of 2 lakh new subscribers per month. We have also seen the figure of 3 lakh new subscribers per month. And we hope to increase it more because it is our dream that anyone from any age group, चाहे वो engineering कर रहा हो, चाहे वो कुछ और कर रहा हो, चाहे वो कोई 13 साल का student हो, चाहे वो कोई 40 years की housewife हो, if they have the zeal to learn coding, if they want to learn about tech, if they want to understand technology, they should be able to do it in a manner which is easy for them. And tech should not have a barrier of a degree or of this ultimate, we have some barriers already in our head कि नहीं इतने level of math आना चाहिए तभी मैं अपनी technology को समझ पाऊँगा ये वो. हम चाहते हैं इन barrier से आगे बढ़ के it becomes easier for everyone to understand technology, to understand coding. And obviously the main is to get students the similar manner of resources that they have in colleges like yours for employability. So we stand for giving that chance to everybody. And if we talk about my entrepreneurial journey, although I had to think really hard and write down these lessons, तो मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो आदत हो गई है, so I'll give you few pointers, like 7 to 8 pointers, like these were my learnings.
because I don't know how an entrepreneur says it. As a teacher, I can try to teach you some things regarding my learnings. So as I mentioned earlier, being an entrepreneur is very similar to being a programmer, being a coder. And the first point of similarity is कि you should start first and you should learn later. बेसिकली अगर मुझे टीचिंग करनी थी और मैं इसी में पहले फंस जाती कि मेरी कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, यार अपना कॉलेज सुनने में उतना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा और कूल क्लासी नाम रखते हैं, लोगों को थोड़ा ऐसे चेंज करते हैं, या पहले SHA और ये सारी चीज़ें करते हैं, टैक्सेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो शायद टीचिंग करनी कभी स्टार्ट ही नहीं करते. तो कई बार इफ़ यू लाइक, इफ़ एनी ऑफ यू लाइक, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो ऑन एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन द फ्यूचर? वैसे तो द बेस्ट वे इज़ टू स्टार्ट and then learn things later, because there is a saying in startups and ventures that you should first build your MVP, which is a minimum viable product, which is a very small version of your product that you go and give out to people and you ask them if they actually like it, if they actually want it. And we did that in the form of our first C++ batch which we gave out on YouTube. हमने पहला अपना बैच बनाया, हमने स्टूडेंट्स को दिया वो, and even though we don't claim that it is the most perfect batch or it is the most perfect piece of information out there, but it gave us the courage which motivated us to go on and teach more things. तो वहाँ से जो करेज मिली हमें कि हम और चीज़ें पढ़ाएं और टेक्नोलॉजी पढ़ाएं, वो तभी मिल पाई क्योंकि हमने एक छोटी चीज़ पढ़ा के देख ली और हमें फील हुआ कि हाँ, स्टूडेंट्स को एक्चुअली बेनिफिट हुआ है और ये चीज़ एक्चुअली ऐसी है जो चाहिए किसी को. तो इंस्टेड ऑफ कि हम एक साल बैठ के अपना बिजनेस प्लान बनाएं, हम सोचें ये चीज़ें मुझे करनी है, बिल्ड समथिंग, गिव इट टू पीपल, note down their reactions. That is the very basic, very practical thing that we can do. In fact, we do it also as a programmer. If we want to build a big project, we don't have to plan out everything, do system design first. That is the process जो companies के अंदर होता है. हमें इन जनरल कॉलेज के अंदर बनाना होता है, हम छोटा सा कुछ बनाते हैं, फिर उसके अंदर फीचर्स ऐड करने स्टार्ट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग दैट आई लर्न वाज कि you have to be a quick learner. बिकॉज वैन यू आर बिल्डिंग योर ओन वेंचर, हर दिन नई प्रॉब्लम्स आएंगे एक तो, एंड रास्ते में कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कभी नहीं की होगी, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी. वैन वी स्टार्टेड आई हैड टू लर्न हाउ टू टीच कोडिंग, in fact how to teach in general, because I was not a teacher, I was a programmer. उसके बाद when we started out with our first batch, we did not know how to build a platform. We went ahead and learned it. We did not know how to build a team. हमने वो सीखा जाके. उसके बाद अपने बैच के अंदर when we had to give live sessions, हमें नहीं पता था कैसे देने हैं. हमने टेक्नोलॉजी, टीम, सारी चीज़ें फिगर आउट की, इंटीग्रेशन वगैरह, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया. फिर हमें लगा कि नहीं, स्टूडेंट्स को TAs की ज़रूरत है, टीचिंग असिस्टेंट्स. हमें नहीं पता था हाउ टू बिल्ड अ टीम ऑफ TAs, हाउ टू गिव द स्टूडेंट सपोर्ट, बट वी वेंट अहेड एंड वी लर्नड इट. Then we did not know how to get DSA instructors who can teach live. तो हर एक छोटी चीज़ जो आप अपने वेंचर के अंदर ऐड करते हो, you have to go ahead and learn it, and you have to be a very quick learner. क्योंकि लर्निंग्स एक तो नीड इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि टू कॉन्स्टेंटली बिल्ड योर सेल्फ अप, बिल्ड योर वेंचर अप, यू हैव टू कीप एडिंग न्यू थिंग्स एंड यू हैव टू लर्न ऑन अ डेली बेसिस. थर्ड मेजर लर्निंग आई वुड से वॉज टू बी अ रियली गुड प्रॉब्लम सॉल्वर. एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कोई गारंटी नहीं होती आपके पास सक्सेस आएगा, आप यू विल गेट मनी, यू विल गेट सक्सेसफुल, यू विल गेट अ गुड लाइफ आफ्टर बीइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप. देयर इज नो आफ्टर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर देयर इज नो गारंटी. But there is one guarantee in the life of an entrepreneur, that you will get problems on a daily basis, and they will all be new kinds of problems. And when we talk about a startup, when we talk about a venture, हमारे venture की जो worth होती है लोगों की eyes में, the people could be users, the people could be investors, anybody, that is directly proportional to कि आपका startup, आपका venture किस level की problem solve करता है और कितने efficiently करता है. your worth as an entrepreneur, your value as an entrepreneur is directly proportional to आप कितने लोगों की प्रॉब्लम और कितने अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो. तो एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बेसिक चीज़ है टू बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. एंड उसमें सबसे पहला स्टेप होता है जब प्रॉब्लम्स आती हैं कि प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं होता, क्योंकि अगर कोड लिखा है तो एरर्स, बग्स, एक्सेप्शन, सारी चीज़ें आएंगी, चाहे आपको 10-15 साल हो गए कोड लिखते हुए. वैसे ही एंटरप्रेन्योर के लिए है, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टअप, व्हाट काइंड ऑफ वेंचर यू आर बिल्डिंग, यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स ऑन अ डेली बेसिस.
तो वो तो एक्सपेक्ट ही करनी है कि दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. नेक्स्ट थिंग दैट आई लर्न एज एन एंटरप्रेन्योर वॉज कोई भी काम छोटा नहीं होता. एज अ एंटरप्रेन्योर आप ये नहीं सोच सकते मैं तो CEO हूँ, मैं तो CEO हूँ, मैं तो CTO हूँ, मेरा काम तो टेक का है, मुझे ये काम क्यों बोला जा रहा है या मुझे ये काम क्यों करना पड़ रहा है. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट योर स्टार्टअप यू आर द HR, you are the customer service team, you are HR executive, you are the editor, the graphic designer, you are everything. क्योंकि जब आपको वो काम खुद नहीं आता तब आप उसके लिए बेस्ट लोगों को नहीं लेके आ सकते अपनी टीम के अंदर. सो यू शुड नो हाउ टू डू ईच एंड एवरी वर्क एंड फॉर यू ईच एंड एवरी वर्क शुड बी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी स्मॉल. यू कैन नॉट से मैं CEO हूँ तो मैं अपने कस्टमर सर्विस टीम की तरह मैं कस्टमर सर्विस कॉल्स नहीं ले सकता है, मैं रिप्लाईज नहीं दे सकता. When we launched Alpha last year, we started monetizing in August 2022, which was last year. It has been almost a year now. And हमें जो response मिला था अपने first batch का, it was really unexpected. इतने हज़ारों मेल्स हमारे पास आ गए थे कि हमने पर्सनली बैठ के 1000+ emails के ऊपर रिप्लाई किया था स्टूडेंट्स को, which were one-on-one replies. And even though we had a customer service team, but we wanted to understand कि हमारे स्टूडेंट्स को क्या इशू आते हैं, उन इश्यूज़ को से वो स्टूडेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करता है और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं फ्यूचर में उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए. तो वहीं पे अगर कोई बैठ जाए कि नहीं यार ईमेल के रिप्लाई मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब इस काम के लिए थोड़ी क्रैक की थी, तो दैट इज़ समथिंग दैट विल नॉट ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट इन द फ्यूचर. तो कोई भी काम छोटा नहीं होना चाहिए. शुरू में आपकी छोटी टीम भी होगी तो टीम के लिए लेट्स सपोज किसी का बर्थडे आ रहा है तो केक भी बैठ के पर्सनली आप ही को ऑर्डर करना पड़ेगा. तो काफ़ी छोटी चीज़ें जिनका शायद आपको उतना बड़ा इम्पैक्ट ना दिखे वो बैठ के करनी पड़ती हैं आपको एज एन एंटरप्रेन्योर. इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, चलो थिंक अबाउट इट तो छोड़ो, बट आई कैन गारंटी यू कि कोई भी जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर होगा, कोई भी जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा, वो कभी भी आके सोशल मीडिया पे या कभी भी आके किसी ग्रुप या स्टेज के सामने अपना 0.001% किसी को नहीं बताएगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट मेक्स देम स्पेशल. एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट 0.001% इज़ हैविंग फेथ इन योर सेल्फ. बिकॉज इफ़ यू बिलीव दैट ठीक है दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू, देन यू विल बी एबल टू डू इट. अगर हमें लगता ही नहीं मैं ये कर सकता हूँ तो आप नहीं कर पाओगे, दैट इज़ अ गारंटी. तो इसीलिए द फर्स्ट थिंग विवेकानंदा सेज कि पहले फर्स्ट वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स, देन वी शुड बिलीव इन गॉड. तो अगर हम इंडिया के सारे भगवानों पे विश्वास कर लेंगे और हम खुद पे विश्वास करना भूल गए तो वो उतना अच्छा आउटपुट लेकर नहीं आ जाएगा. इसीलिए खुद में बिलीव हमेशा होना चाहिए. एंड इफ़ यू वांट, this is a very practical advice, if you generally want real entrepreneurial advice from someone, go and meet people in one-on-one, because they're more likely to tell you about their venture more if you go and meet them personally. Because every venture, every startup have different rules, and even if I share a list कि ठीक है ऐसे ऐसे आप कर लो and you'll build this, या बिल गेट्स आके कहीं ऐसे ऐसे कर लो you'll build the next Microsoft or anything, we won't be able to do it, because जो उनका 0.001% फैक्टर है वो हमारे लिए अलग होगा और वो हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने लिए उस फैक्टर को ढूंढना. सो आई थिंक दैट इज़ द मेजर लर्निंग जो मुझे मिली. बिकॉज शुरुआत में एज अ स्टूडेंट हम कभी अगर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते भी तो थे तो हम सोचते थे कि हाँ ठीक है कुछ हम देख लेंगे, किसी से हम पूछ लेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा. पर कुछ चीज़ें लाइफ में होती हैं जो आपको नहीं पता चलेंगी. कुछ चीज़ें लाइफ में हैं जो आप करना स्टार्ट करोगे फिर आपको खुद से ही फिगर आउट करनी पड़ेगी. तो दैट इज़ द रोल, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल दैट टाइम प्लेज in all of it. And basically those were my few learnings from my entrepreneurial journey. And generally the seminars that I have, they are regarding coding. This is my first one which was regarding entrepreneurship. So what we can do is we can have a small Q&A session if you guys want. And अगर किसी के one-on-one questions हैं तो हम उनको answer कर सकते हैं. So there is that guy who is raising his hand. Hello ma'am. Hello. So I had a question ready, but you answered it in your speech. Like my question was that as an engineer we are told to add features and all the qualities in our product. But as an entrepreneur we learn what the market actually wants and what actually sells. So you already answered that. But I have another question, that how do you go around the process of team building? And a follow-up question on that is
how do you infuse your qualities? Like as a leader, it is your duty to keep your company alive even after you resign or whatever you choose next. So how do you infuse that sense of purpose in the company, in the core members of the team? फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी टीम हायर करने के लिए सबसे पहले तो जिस काम के लिए आप टीम हायर कर रहे हो, यू कांट, इवन इफ़ यू हैव एचआर्स इन योर टीम, यू कांट रिलाई ऑन जस्ट द एचआर देमसेल्व्स. आपको खुद उस काम के बेसिक्स आने चाहिए. आपको खुद पता होना चाहिए कि ठीक है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ गुड एडिटर एंड अ बैड एडिटर, व्हाट डज इट मीन टू बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अ बैड सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तब जाके यू विल बी एबल टू असेस पीपल इन इंटरव्यूज़ कि हाँ एक्चुअली आप किसको हायर करना चाहते हो. एंड जनरली हर किसी का अपना वैल्यू सिस्टम होता है, हर किसी की बेसिक चीज़ें होती हैं. देर इज़ दिस वन स्मॉल थिंग दैट वी डू इन आर इंटरव्यूज़. जब भी हमें किसी थोड़े से ऐसे रोल के लिए हायर करना, थोड़े से क्या, हमें किसी भी रोल के लिए हायर करना होता है, तो हम रैंडमली 5th 6th क्लास के मैथ के क्वेश्चन पूछते हैं. बिकॉज एज इंजीनियर्स आई एंड अमन सर वी आर वायर्ड टू थिंक दैट वे कि ठीक है मैथ स्ट्रॉन्ग होगा तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि लॉजिक थोड़ा सा अच्छा होगा. तो हम स्कूल मैथ्स बीच बीच में पूछ लेते हैं, हम HR रोल्स के लिए भी पूछते हैं, हम कस्टमर सर्विस रोल्स के लिए भी पूछते हैं. सो दैट इज़ आर वैल्यू, दैट इज़ वॉट वी बिलीव इन. तो इस तरीके से हर कंपनी का अपना वैल्यू सिस्टम होता है. इवन इफ़ यू लुक एट द लार्ज टेक कंपनीज, जैसे अमेजॉन के अपने 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं. इफ़ यू शो द लीडरशिप प्रिंसिपल्स इन देयर इंटरव्यूज, मतलब you have more chances to get hired. Google checks for something called googliness, which is basically entrepreneurial spirit, the ability to tackle problems and solve them in a good way, efficient way. तो अगर वो चीज़ आप किसी तरीके से अपने इंटरव्यूज़ के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू दिखा पाते हो, अपने HR राउंड में दिखा पाते हो, तो दैट इंक्रीजेज योर चांसेस. तो उसी तरीके से आप वो टाइम के साथ बिल्ड होगा. इट डिपेंड्स अपॉन आप किस तरीके का वेंचर कर रहे हो, उसमें कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको कैसे लोग चाहिए. अब हमें पता है हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड दे आर ऑलरेडी स्मार्ट, सो दे विल हैव स्मार्ट प्रॉब्लम्स. सो वी नीड स्मार्ट पीपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो दैट इज़ वन थिंग कि अपने जिस भी रोल के लिए हायर कर रहे हो उसके बारे में बेसिक्स पहले से आपको पता हो, उसके बेसिस पे आप हायर करो. एंड व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? Like as a leader, how to instill good team spirit. Exactly, and all. exactly, yes. First of all, to be able to retain good people, you need to pay them well. That is the basis of all companies, all industries working out there. Even we don't like launching paid batches, but we have a team to run. And so to keep good people in the team, you need to pay them well. See, I know a lot of people say कि ठीक है the culture should be good, all the values should be great, but ठीक है you have to keep the company culture good. आप कुछ negative नहीं कर सकते. Their goal, what is their purpose? Share your goal and purpose with them. But उसके बाद भी एक जो अच्छा smart व्यक्ति है वो आपके साथ तभी टिका रहेगा when they see कि ठीक है they are being paid well for their time. And no matter हम कितना भी अच्छी बातें करें, हर कोई कंपेयर करता है कि ठीक है दिस इज़ माई पैकेज, दिस इज़ द पैकेज दैट इज़ बीइंग जनरली ऑफर्ड इन द इंडस्ट्री. दैट इज़ वाई पीपल स्टे इन गूगल इन जनरल फॉर अबाउट 2 years and then they quit Google also. It's not like Google is paying them less, but we always compare as human beings, and as human beings we need to feel satisfied in the place where we are. So first and foremost, pay them well. And की डेट में nobody, private is not टिपिकल सरकारी नौकरी जिसमें कुछ भी चल रहा है तब भी व्यक्ति क्विट नहीं करेगा. टुडे पीपल क्विट एंड दे फाइंड अ सेकंड जॉब वेरी इजीली. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, myself Shamal Shevde, and I have been studying in your Delta batch since starting. And as I have passed 12th grade, so I have got that video of yours where you have introduced Delta to us for full stack web development. So ma'am, my question for you is that how to stay consistent? Like how, when I started, I have watched Utils HTML and CSS while making notes with 4 color pens and 5 color pens and everything. But as time goes, I have joined college now, and while joining college, I have got many other things like MST is coming. So the question for you is that how to make that important and give it importance. मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ. 2-3 सवाल हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे यूट्यूब में हो चाहे बैचेस में हो. इनफैक्ट आई फील हर टीचर से पूछे जाते होंगे चाहे वो कुछ भी पढ़ा रहा हो. फर्स्ट इज़ हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट. सेकंड इज़ बैकलॉग को कैसे टैकल करें. थर्ड इज़ हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इनफ टू कीप लर्निंग.
how to stay disciplined, how to follow my timetable. इसमें मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, do you want the answer that you think you want, or do you actually want the answer that you need? You need the right answer, right? तो मैं जो बोलूँगी वो हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को थोड़ा हर्ट कर दे, उसके लिए आई एम सॉरी, बट आई एम ओनली ट्राइंग टू गिव यू, मतलब मैं वैसे बता रही हूँ आपको जैसे मैं अपने भाई को बताऊँगी, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो स्टडिंग फ्रॉम डेल्टा. सी, टू स्टे कंसिस्टेंट, टू स्टे मोटिवेटेड, टू नॉट हैव बैकलॉग, और रोज़ जाके मेहनत करना, वो ऐसी चीज़ है जो इंटरनल ड्राइव से आएगी. और इंटरनल ड्राइव के लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मुझे क्यों मेहनत करने की ज़रूरत है. हो सकता आप हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हम थोड़े से अपने सेफ एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं. वी स्टार्ट टू एंजॉय द कॉलेज लाइफ बिकॉज वी फील लाइक कॉलेज एक ही बार आएगा, दोस्त एक ही बार आएंगे, अभी टाइम है ट्रिप करने का, बाद में तो ठीक है जॉब लग जाएगी, सब अलग अलग हो जाएंगे. बट दैट इज़ नॉट हाउ लाइफ वर्क्स. दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ. आफ्टर 15 years when you meet your classmates, when you meet your friends, you all will be judging each other on the basis of how much you earn or how successful you are. That is the fact about life. I am sorry to say this, but this is true. And इसमें if you want to do well for yourself, first of all think about your parents. Why are they sending you to college? Why have they paid you money to enroll yourself in a batch? Then think about your dreams. Did you crack IIT to remain at a very mediocre place? You're already at one of the best colleges in India. Why wouldn't you want to go forward and do something better for yourself? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ आपको कोई बताएगा नहीं. इनफैक्ट मैं आपको रोज़ आके आपके घर आऊँ और बोलूँ कि ये सोचो, इनके बारे में सोचो, आप बोर हो जाओगे. अब मेरे वर्ड्स कुछ मीनिंग होल्ड नहीं करेंगे. तो अगर एक्चुअली यू वांट टू स्टे मोटिवेटेड, यू वांट टू स्टे कंसिस्टेंट, तो उसमें हार्ड फैक्ट्स जो हैं हमारी लाइफ के अराउंड, उनके बारे में हमें बैठ के सोचना पड़ेगा. एंड हम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जो एक्शंस हैं वो खुद ही ले सकते हैं. कोई और आके हमारे बिहाफ पे पढ़ाई नहीं करेगा, ना हमारे कोडिंग टेस्ट दे देगा, ना हमारे बिहाफ पे इंटरव्यूज़ के अंदर बैठ जाएगा, ना जाके हमारी जॉब कर देगा. वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद करनी पड़ेंगी. एंड मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है somebody who is enrolled in my batch is already in a position of privilege because I meet a lot of students जिनके लिए 5,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है. they are not able to afford it. तो वी आर ऑलरेडी एट दैट पोजिशन जब हम कुछ रिसोर्सेज को अफोर्ड कर सकते हैं. इनफैक्ट आप वो भी नहीं कर सकते, यूट्यूब आज की डेट में सबके लिए फ्री है, बट स्टिल हम कंसिस्टेंट मोटिवेटेड इसलिए फील नहीं कर पाते क्योंकि हमने उतना दिमाग डाला ही नहीं होता अपने ड्रीम्स की तरफ. हम सिर्फ बोलते हैं कि हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे गोल्स हैं, बट जब वो एक्चुअल पॉइंट आता है, जब मुझे सैक्रिफाइस करना होता है कि आज घूमने जाऊँ नहीं जाऊँ या बैठ के अपना काम करूँ, आज मैं बैठ के 2 घंटे पढ़ाई कर लूँ, दोस्त के साथ गॉसिप ना करूँ कि क्या हुआ, या वीकेंड पे पार्टी या ट्रिप प्लान करने ना जाऊँ, बैठ के अपना पढ़ाई कर लूँ, मेरी इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स आ रहे हैं. तो वो जो हार्ड मोमेंट आती है जब डिसीजन लेना होता है, उसमें हम नहीं ले पाते. पर वहीं पर ऐसा स्टूडेंट होगा ना जो रोज़ अपनी फैमिली को देखता होगा कि मेरी फैमिली को ज़रूरत है, माई फैमिली नीड्स दैट आई नीड टू बी इन अ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, दे नीड मी टू डू इट, एंड आई नीड टू डू इट फॉर माई सेल्फ फॉर अ गुड फ्यूचर, बिकॉज एट द एंड we live for our families, we live for ourselves to make ourselves better, and at the end life is all about work, it is not about enjoyment. आप जितना meaningful, जितना अच्छे से अटैच होकर अपने काम को करोगे, उतना फुलफिल्ड आप फील करोगे. तो कॉलेज ऐसी फेज़ होती है जिसके अंदर वो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, एंड ये जो चीज़ है ये आपको खुद से ही करनी पड़ेगी. देयर इज़ नो फिक्स रूल कि मैं आपको बोलूँगी अब बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है. सबको पता है एक्स्ट्रा टाइम बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बैकलॉग अपने आप कंप्लीट होगा. पर वो एक्स्ट्रा टाइम बैठा ही तो नहीं जाता, वो मैं थोड़ी आपको बिठा सकती हूँ आके, वो तो आपको खुद बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, किताब खोलनी पड़ेगी. कंसिस्टेंट कैसे रहना है, रोज़ टाइम निकालो, फिक्स टाइम करो कि हाँ मुझे रोज़ 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पढ़ना है, अपना लेक्चर कंप्लीट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो खुद ही करना पड़ेगा ना, मैं कुछ कर नहीं सकती उसमें. So I hope it helps. Thank you, ma'am. Good evening, Deep. Good evening. First of all, I would like to thank you for coming here and sharing your advice. So my question is, like you just mentioned earlier that you don't like to teach initially, and then you are in... Did I say that? Yes, initially.
When did I say that? Did I say that? At the starting, you just mentioned that I don't want to be a teacher. Acha, when I was in school. Yes. Huh. Is it like that you didn't try teaching and then you felt like, no, I don't want to be a teacher, or is it like you had just experienced something and then when I watch your lectures, it's just like amazing. So is it just because of the practice that you are being in and you had just like teaching, or is it like you had just developed interest in that? See, I have 2 younger brothers, so we are 3 siblings. And उसके अलावा in village बचपन में we used to live in a joint family, so I have a lot of cousins. मेरे 6 छोटे भाई हैं. If I include the cousin, I have 1 younger sister in my cousins, and I used to teach them बचपन में. एंड उनको पढ़ा के मुझे इतना गुस्सा आता था, मेरा मन करता था कि मैं इतनी पिटाई करूँ, इनको समझ के नहीं आ रहा है, पढ़ के नहीं रहे. And also there is one more thing. So see, हरियाणा के अंदर if we consider states like हरियाणा, राजस्थान, काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे वहाँ से. जनरली what happens is कि लड़के जो होते हैं वो सरकारी जॉब वाली साइड पे चले जाते हैं, लड़कियाँ जो होती हैं they become nurses and teachers. And the reason for that is because they are going to build a family. तो as a nurse it is a more nurturing role, या डॉक्टर का भी generally nurturing role माना जाता है. टीचर जनरली इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि सूटेबल मैचेस आसानी से मिलेंगे, क्योंकि टीचर है तो 2-3 बजे तक फ्री हो जाएगी, उसके बाद घर वगैरह देख सकते हैं. सो बट सी आई टोल्ड यू एट दैट टाइम आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट आई थॉट माई विजन वॉज फॉर द फ्यूचर. And in that vision, I wanted to become something else. I wanted to have a different lifestyle. So teaching, जब स्कूल में सोचते थे तो मैंने नहीं सोचा था कि टीचिंग स्टूडेंट्स मतलब इस तरीके से आप पढ़ा सकते हो, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो. बिकॉज जनरली तब तो यही पता होता था प्रोफेसर बनने के लिए पहले मास्टर्स करनी पड़ेगी, फिर PhD करनी पड़ेगी, फिर जाके जॉब ढूंढनी पड़ेगी. एंड उतना टाइम फ्रैंकली नहीं होता, क्योंकि आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड आई वॉन्टेड टू गेट अ गुड सिक्योर जॉब एट अ यंग एज. बिकॉज मुझे पता था मुझे इंजीनियरिंग के बाद जॉब ही करनी है, मुझे स्टार्टिंग में जाके कोई मास्टर्स नहीं करनी है. तो मेरे जो गोल्स थे उसके साथ वो चीज़ अलाइन करती थी. बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन अपना कॉलेज आई रियलाइज दैट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन देन ट्रेडिशनल टीचिंग, देन व्हाट आई थॉट टीचिंग वॉज इन स्कूल. सो ठीक है, दोनों रोल्स टीचर के हैं और हर टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, जितनी भी लर्निंग्स वो शेयर करता है. बट दिस इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द टीचिंग दैट आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू इन माई स्कूल लाइफ. We'll have one final question from the audience. Hello. Hello. As we all know that you had interned at DRDO, could you please provide some tips for someone with a similar problem? I have made an entire YouTube video about it. I have explained the entire process, how you can look out for openings, what is the time, how to approach, what is the process going to be like. Not especially for DRDO, but in general government organizations that provide research into opportunities. ठीक है. सो आई रिसेंटली इंटरव्यूड वन ऑफ आर स्टूडेंट्स जो भी इसरो के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं. एंड सी वील पुट आउट द इंटरव्यू शॉर्टली, बट इट्स द सेम जनरल प्रोसेस. जनरली क्या होता है, इसरो, DRDO, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करती हैं कि ठीक है इस टाइम पे हम अपने इंटर्न्स हायर करेंगे. अब उस टाइम पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो. एंड सबसे बेसिक लेवल ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग आपके रेज्यूमे के बेसिस पे होता है. जनरली साइंटिस्ट या अगर आप किसी दूसरी IIT के अंदर भी जाके अप्लाई कर रहे हो फॉर रिसर्च इंटर्नशिप, वो प्रेफर करते हैं कि अकेडमिकली आप अच्छे हो और जिस भी फील्ड में इंटर्नशिप करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास प्रोजेक्ट्स हो. फिर वो आपको 1-2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ के लिए बुलाएंगे, जिसमें जो चीज़ें आपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन की उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू करेंगे एंड उसके बाद यू फाइनली गो देयर एंड डू इट. बट वन ड्रॉबैक जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप करने का होता है दैट दे डोंट पे यू. इन इसरो और इन DRDO दे डोंट पे यू फॉर द इंटर्नशिप. अगर आप जाके किसी दूसरी सिटी में रहते भी हो, ट्रैवल करते हो, दैट इज़ ऑल ऑन योर ओन. सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर बिफोर अप्लाइंग फॉर एन इंटर्नशिप. बाकी देयर इज़ अ डिटेल्ड वीडियो आउट देयर एंड वील ऑल्सो पोस्ट वन फॉर इसरो soon. My question is like what is that one skill that can differentiate you from rest 1,000? Like what can make you stand out? It can't be only a technical or entrepreneurial skill. It can be any skill. What according to you is can be that? हर व्यक्ति के लिए अलग होता है. कुछ लोगों के लिए कोई अलग स्किल होगी, मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल. एंड
one thing I tell my students is to not compare themselves with their classmates, because comparison generally doesn't bring anything positive. तो what you can do is to build your own unique thing. आप पहले खुद realize करो मेरे अंदर क्या क्या positive characteristics हैं, and double down on building the positive characteristics. So हर individual का अलग unique skill होता है. अच्छा, one more thing that I wanted to mention is, मेरे एक student ने पूछा था मुझसे related to work-life balance. I forgot to include it in the internship learnings. अच्छा, one thing I've realized in my journey is, अब तो 3 साल हो गए, that if you do entrepreneurship right and if you feel like कि हाँ इस direction में मैंने steps लिए थे और मेरा venture जो है वो ठीक direction में चल रहा है और यही चीज़ मैंने expect की थी, तो generally you will not have work-life balance. There will be multiple times जब आपको sacrifice करने पड़ेंगे your holidays, your good times. In fact, if I take an example of my day from today, I woke up at 6, I took my flight, I came here, and today is supposed to be Sunday. Even though for me Sunday and Monday and Wednesday, they are all same. And I'll reach Delhi at 12:30 in the night because my flight is at 11. So this is, मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर दिस कुड बी योर वन डे, एंड दीज डेज ऐसा नहीं है कि बहुत रेयरली आएंगे, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आएंगे. एंड एज एन एंटरप्रेन्योर दिस इज़ द लाइफ दैट यू चूज एंड यू शुड बी कंटेंट विद दिस लाइफ, बिकॉज आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर द वन हु डिसाइडेड टू पिक दिस लाइफ. तो इफ़ आप में से कुछ लोग अगर जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की डायरेक्शन में, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पिक टाइम फॉर योर सेल्फ और फॉर योर लव्ड वंस. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने टाइम में से कुछ टाइम मैं अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करूँ, कुछ मैं दूसरी चीज़ों पे इन्वेस्ट करूँ, अपनी फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करूँ. तो वो आपके लिए एक एडिशनल टास्क होगा अपने डे का, उस टाइम को किसी न किसी तरीके से निकालना. सो दैट इज़ ऑल्सो आई थिंक वन थिंग जो हमें एज अ स्टूडेंट नहीं पता होती एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिकॉज व्हेन वी थिंक अबाउट आवर बिजनेस जनरली वी सी कि ठीक है हम अपने टाइम के खुद के मालिक होंगे, बट दैट इज़ नॉट द केस. द पीपल दैट यू सर्व थ्रू योर वेंचर, वो आपके टाइम के मालिक होते हैं, आप अपने टाइम के मालिक नहीं होते. सो दैट इज़ माई वन लर्निंग फ्रॉम, जो मिस आउट हो गई थी बीच में.